ایک ایسا ادارہ ہے جو تقریباً 21 سال پہلے قائم ہوا، جو نوجوانوں نے مل کے اسے قائم کیا تھا اس خیال سے کہ غریب بچوں کو جو اپنی غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لیے کچھ انتظام کیا جائے۔ آج 21 سالوں میں ایک اندازے کے مطابق 15,000 بچے شہادت حاصل کر چکے ہیں اور ابھی مستقل ہو رہا ہے کام، اور دن ب دن ترقی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کو اور فروغ دے، زیادہ سے زیادہ بچے اس سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ زکوٰۃ مذہب اسلام کا ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پلر ہے، اور اس کا شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جس کسی بھی مسلمان کے پاس اتنا کیش اور کائنڈ ہو کہ وہ ایکویولنٹ ٹو 52.5 تولے چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس پر اگر سال گزر گیا ہے تو لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی شخص صاحب نصاب ہے وہ وقت رہتے ہوئے اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ اور زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ کہ اس سے آپ کا بقیہ مال و دولت پاک اور صاف ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جو کمیونٹی میں جو غریب ہیں، جو غربا ہیں، ان کے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں۔ اور زکوٰۃ کا ایک بہت اہم کانسیپٹ یہ ہے کہ کلیکٹیو زکوٰۃ دی جائے۔ کلیکٹیو زکوٰۃ سے مراد یہ کہ ایک شخص کو اتنی زکوٰۃ دی جائے کہ وہ آنے والے سالوں میں خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی مسلم اسٹوڈنٹس ہیں، جو غریب ہیں، اپنی فیس نہیں افورڈ کر پا رہے ہیں ان کے پیرنٹس، تو اگر ہم ان بچوں کو اسپانسر کرتے ہیں تو آنے والے چند سالوں میں وہ بچے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے اور خود زکوٰۃ دینے والے انشاءاللہ بنیں گے۔ اس فیلڈ میں ہمارے یہاں لکھنؤ میں پرواز فاؤنڈیشن پچھلے کئی سالوں سے بہترین خدمات انجام دے رہا ہے، اور ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بچوں کو آپ ہی کے تعاون اور ڈونیشن کے ذریعے سے آج وہ بچے کا تعمیر و ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے دردمندانہ اپیل ہے کہ پرواز فاؤنڈیشن کو زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ اور دیگر ڈونیشن دیں، جس سے کہ ہم اور آپ مل کر کے اپنی قوم کے بچوں کو ایجوکیشن کے ذریعے سے نیشن بلڈنگ کے لیے کام لے سکیں۔ When my father passed away, at that time I was ایسا کہ میں کیسے کیا کروں گی، کیسے مینیج کر پاؤں گی، کیونکہ I have also completed my education and میرے سبلنگس کی بھی تھی۔ That time پرواز فاؤنڈیشن نے مجھے جو سپورٹ دیا، ہائی اسکول میں بھی میں نے ٹاپ کیا، انٹر میں بھی میں نے ٹاپ کیا، اینڈ الحمدللہ ان گریجویشن آلسو I was felicitated with the gold medal۔ آنندی بین پٹیل نے مجھے فیلیسیٹیٹ کیا تھا۔ جو بھی ہوں میں، جہاں بھی ہوں آج، جسٹ بیکاز آف دیم۔ آج آپ سب کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تقریباً 8 سال پہلے جس بچے کی آپ نے ایموشنلی اینڈ فینینشلی دونوں طریقے سے ہی ہیلپ کی تھی، اسے مضبوط بنایا تھا، آج وہ بچہ ایک MBBS اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس سیفئی میں۔ میری زندگی میں سب سے اہم ترین رول جو رہا ہے وہ پرواز فاؤنڈیشن کا ہی رہا ہے، جس کے بلبوتے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ پرواز فاؤنڈیشن کا رول میری زندگی میں کچھ ایسا ہے مانو چراغ ہو، جس کے سہارے میں راستہ بناتا گیا اور اپنی منزل تک پہنچتا چلا گیا۔ پرواز فاؤنڈیشن میری بیسک ایجوکیشن سے لے کر یونیورسٹی تک میرے ساتھ رہی ہے۔ رسپیکٹڈ سر اینڈ آل دا ممبرس، آج میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بہترین آرتھوپیڈکس بن کر آپ کی اس مہم کو میں آگے چلاؤں گا، اور اس دن آپ کو مجھ پر ناز ہوگا۔ علی بھی بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو تعلیم سے محروم ہیں۔ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ہونہار بھی ہیں، جن کے خواب بڑے ہیں مگر وسائل چھوٹے ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ غربت کی وجہ سے بچوں کی فیس نہیں ادا کر پاتے اور ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی ہے تو یہ صرف گھر کا نقصان نہیں بلکہ معاشرے اور ملک کا نقصان ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہاتھ آگے بڑھیں اور ان کو جہالت و غربت کے اندھیرے سے باہر نکالیں۔ چیریٹی از اے پارٹ آف آور ریلیجن، لیکن تاریخی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کلیکٹیو زکوٰۃ کی زیادہ اہمیت ہے اور اس کے نتیجے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہر سال اپنی زکوٰۃ کا حصہ پرواز فاؤنڈیشن کو دیجیے اور ہمارے مشن میں شامل ہو جائیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلم بچوں کا سیکنڈری لیول پر ڈراپ آؤٹ ریٹ تقریباً 18 سے 19% ہے۔
जो कि कौमी औसत से बहुत ज़्यादा है। और हायर एजुकेशन में भी मुस्लिम तलबा की हिस्सेदारी सिर्फ 5-6% रह जाती है, जो कि 15% जो कि नेशनल एवरेज है हमारी पॉपुलेशन को, उससे बहुत कम है। और ये इसलिए नहीं है कि हमारे बच्चों में सलाहियत की कमी है या कोई और खामी है, बल्कि स्कूल फीस, किताबें और यूनिफॉर्म्स का खर्चा उनके लिए रुकावट बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दहाइयों से हमारी फाउंडेशन ने इसी सोच के साथ काम किया है। आज हम एक नस्ली तब्दीली, जनरेशनल शिफ्ट देख रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। यही हमारी सक्सेस स्टोरी है कि जिन घरों में वालिदैन मुश्किल से स्कूल तक पहुंचे थे, उन्हीं घरों के बच्चे आज बेहतर स्कूल्स, कॉलेजेस और प्रोफेशनल कोर्सेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में स्कूल फीस और तालीम खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसके लिए मैं आप लोगों से ख़ास तौर से दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएं। आज से 15 साल पहले जिन बच्चों की फ़ीस हम लोग 300 से 400 रुपये दिया करते थे, आज वो बढ़ करके 1000-1200 पहुँची है। अगर आप हमको 10,000 रुपये देते थे तो उस वक़्त आप 2 से 3 बच्चों की मदद कर रहे होते, बट आज उस कंट्रीब्यूशन में हम लोग सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा पाते। इसलिए आज आपकी ज़कात और ताउन बहुत अहमियत रखता है। आइए मिलकर ये यकीन बनाए कि कोई भी लाए बच्चा सिर्फ गुर्बत की वजह से स्कूल छोड़ने पर मजबूर न हो। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है परवाज़ फाउंडेशन के साथ, वो 2008 से स्टार्ट हुई है, जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करती थी इन CMS स्कूल। हमारी फैमिली में काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हैं शुरुआत से ही। जब मैं उस पॉइंट पर आई जहाँ पर मेरी फैमिली के पास मुझे सपोर्ट करने के लिए वो फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं थी, तो परवाज़ फाउंडेशन केम इनटू पिक्चर। एंड उस 2008 से लेकर 2012 तक, इवन जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, तब तक परवाज़ फाउंडेशन के हर मेंबर ने मेरी हेल्प करी है। उन्होंने मुझे फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली सपोर्ट किया। सारे टीम मेंबर्स जिनको मैं याद करती हूँ अभी भी, तो मुझे लगता है कि शायद मैं इस मुकाम पर जो आज पहुँच गई हूँ वो ना पहुँच पाती अगर इन सब की मदद ना होती उस टाइम पर। उसके बाद मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से अपनी बीटेक इंजीनियरिंग कंप्लीट की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मैंने टाटा मोटर्स ज्वाइन किया एज अ सीनियर मैनेजर। मेरा सैलरी इज़ अराउंड 27 lakhs। तो अल्हम्दुलिल्लाह परवाज़ फाउंडेशन के मेंबर्स हैं, उन सब की वजह से ही आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। एक टाइम पे मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पर एसोसिएटेड थी, बट राइट नाउ एज अ डोनर भी सपोर्ट कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी जितनी भी मेरी कैपेसिटी होगी। Currently, I'm pursuing MBBS from King George Medical University. It was not easy for me to reach where I'm today, but there is a saying that if you get a good guide, you can achieve anything in life. And that guide, that support system, that counselor was Parvaz Foundation for me. From class 5th itself, I was connected with Parvaz Foundation till that. At last, I just want to thank the whole team of Parvaz Foundation for supporting me in this journey. परवाज़ फाउंडेशन एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहा है, और इस इदारे का मकसद है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो बस्तियों में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, उनको हमारी टीम आइडेंटिफाई करती है और उनके घर के जो लोग हैं उनकी आमदनी कितनी है उसको पूरा जायज़ा लेते हुए, और फिर उनको किसी तरह से उनकी फ़ीस की ज़रूरत पूरी करते हुए उनको स्कूल तक पहुंचाती है। और हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक्सेल किया है और उसमें कई डॉक्टर्स बने हैं, कुछ एयर होस्टेस बनी हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने प्रोफेशन चुना है। बहुत खुशी की बात है, ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए और अपने कौम को तरक्की की राह चलाइए। हमेशा हम ज़कात के पैसे जो हैं वो तालीम के लिए देते हैं, और किन लोगों की तालीम के लिए देते हैं? जो पढ़ने में अच्छे हैं। यहाँ पर मैं एक बात और भी कहूँगी, एक पुरानी कहावत है कि अगर आप एक औरत को तालीम देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने पूरे माहौल को तालीम दी है, पूरे मुल्क को तालीम दी है। क्योंकि एक औरत अगर पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चों की परवरिश एक पढ़े लिखे अंदाज से करेगी,
उसको इस बात का मालूम होगा कि आजकल कितनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो वो ग्रीनरी की तरफ तवज्जो देगी। अपने अगर छोटे सा उसका बाग है तो बच्चों को ये भी तालीम देगी जो वो भी इसमें उसके आगे हाथ बढ़ाए। तो मेरा पैगाम आज यही है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और इस बात की कोशिश करना चाहिए कि वो आगे बढ़े। जब तक वो औरत आगे नहीं बढ़ेगी तब तक आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा, वो आपका माहौल नहीं तरक्की करेगा। औरत की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मर्द भी पढ़े, एजुकेशन हर एक के लिए ज़रूरी है। Our life is changed when my elder brother died in an accident. He bears our all education expenses. After his death, me and my sister, हमें ये लगा कि अब हम लोग की पढ़ाई आगे नहीं हो पाएगी, अब क्या होगा, क्योंकि मेरे फादर ड्राइवर थे और वो इतना नहीं हम लोग की एक्सपेंस कर सकते थे एजुकेशन पर। थैंक्स टू प्रवास फाउंडेशन जिन्होंने हमारी हेल्प करी और हमें असिस्टेंट दी, प्रॉपर गाइडेंस किया और आज हम लोग एजुकेटेड हैं, इंडिपेंडेंस है माशाल्लाह। करंटली आई एम परसुइंग बीएड एंड वर्किंग एज अ टीचर इन एन इंटरनेशनल स्कूल। This is possible only because of Parvaz Foundation. I thank to Parvaz Foundation for all the support that they have provided. मेरी एकेडमिक जर्नी में परवास फाउंडेशन ने मुझे काफ़ी हेल्प दी है। उनके सपोर्ट से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से। मैंने बलरामपुर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप भी करी है, JBS चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैंने वर्क भी किया है। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी एज वेल। उम्मीद करती हूँ कि मैं भी एक दिन इंशाल्लाह इस मुकाम पे पहुँचूँ जिससे मैं उन्हें सपोर्ट कर सकूँ इंशाल्लाह। मुस्लिम समाज में लड़कियों की पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बहुत कम है। एक ही घर में एक लड़का लड़की होगी, गरीब घर हो या अमीर, तो लड़के को खूब अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी पढ़ाने की, और लड़की को अगर वो मेहनती भी, हार्डवर्किंग भी, इंटेलिजेंट भी है तो कह दिया जाएगा कि नहीं भाई इसकी तो शादी होना, बस इतना करा के BA करके शादी कर दो। लड़का अगर नहीं भी पढ़ रहा है तो आवारागीरी कर रहा है, उसके ऊपर खूब खर्चा किया जाएगा। लड़कियों की शादी में खर्च करने के लिए पैसा है लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं है। ज़कात का भी जो निज़ाम है अगर वो एजुकेशन पे लिया जाए तो जब एजुकेटेड इंसान हो सकता है तो कहीं भी अपने पैरों पे खड़ा होके उसका दिमाग खुलता। ज़रूरी नहीं कि उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, वो बैंक में जाके अच्छी तरह बात कर सकता है, वो DM से बात कर सकता है, वो SSP से अपना पॉइंट रख सकता है। अगर उसको कोई आके मोहल्ले में सता रहा है तो अपना पॉइंट रख के अपनी बात अच्छी तरह बोल सकता है। इसलिए लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और एक अनपढ़ लड़की जो एक फॉर्म भरना भी नहीं जानती बैंक का, उसके लिए ज़िंदगी काटना अब बहुत मुश्किल है। तो इसी के साथ मेरी दुआ है कि हर वो लड़की जिसको पढ़ने का शौक़ है, हर वो लड़की जो मेहनती है, हर वो लड़की जो हार्डवर्क करके कुछ बनना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ी हो और 10 का भला करो। हमारी कोशिश सिर्फ माली इमदाद तक महदूद नहीं है। परवाज़ रहनुमाई, कैरियर काउंसलिंग और मुसलसल हौसला अफजाई के ज़रिए बच्चों के दिलों में उम्मीद जगाता है। हम वालिदैन और मुआशरे के साथ मिलकर तालीम के अहमियत को उजागर करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर ना हो। हमारी सोच सीधी सी, जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए किसी बच्चे की तालीम में मदद करते हैं तो आप सिर्फ एक फ़ी अदा नहीं करते बल्कि एक मुस्तक़बिल रोशन करते हैं। अल्लाह हम सबको सदके जारिया बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। परवाज़ फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जो कि हमें इतना सपोर्ट किया। हम लोग 4 बहनें 1 भाई हैं और मेरी मदर फीस पे नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे और हम सारे भाई बहनों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो तब हम लोग को परवाज़ फाउंडेशन के बारे में पता चला। परवाज़ फाउंडेशन ने हम चारों बहनों और भाई की फ़ीस पे करी। सो आज मैं BSc कर रही हूँ और एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही हूँ फ्रैंकफिन से। सो थैंक यू सो मच परवाज़ फाउंडेशन। परवाज़ फाउंडेशन एक बहुत अहम मुहिम को चला रहा है
मैं समझता हूँ कि नेशन बिल्डिंग में और कम्युनिटी बिल्डिंग में दोनों परवाज़ का ये जो काम है ये बेइंतहाई इम्पोर्टेंट है, बेइंतहाई ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि परवाज़ और ऊंची होते रहे। I am an LLB student. I have completed my 12th grade from BLS Inter College. At the time of my admission, my family was facing serious financial difficulties. We are 4 sisters and 1 brother. And after my father passed away, my mother had to manage everything on her own, which was quite difficult for us. During this difficult time, we got to know about Parvaz Foundation. The foundation supported us by paying my educational fees. Without their help, I might not have been to continue my studies or pursue my dreams. I am very grateful to Parvaz Foundation. I sincerely thank you from the bottom of my heart for supporting me during my intermediate studies. With your financial help, I was able to complete my 12th successfully. Alhamdulillah, today I am giving tuition classes and also pursuing diploma in anesthesia from Era College. Your zakat can make the difference. If आप एक बच्चे को या बच्ची को पढ़ा देते हैं और उसकी impoverished self से वो कुछ एक self sustaining इंसान बन जाता है, तो उससे तो एक आदमी को आपने नहीं बनाया, एक फैमिली को सपोर्ट किया है, एक नस्लों को सपोर्ट किया है, वो आगे चल के हमारे आपकी तरह ही हो जाएंगे इंशाल्लाह. So join the cause, donate to Parvaz. Your zakat will make it the difference. And also join the cause by promoting the cause of Parvaz. Parvaz के आप ब्रांड एम्बेसडर बनिए. मैंने अपनी पढ़ाई आपके सपोर्ट और ट्रस्ट की वजह से ही कंप्लीट करी है. अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाती. थैंक यू सो मच. प्रवास फाउंडेशन की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी इतनी मदद की और आज मैं अपना ड्रीम पूरा कर पा रही हूँ. तो थैंक यू प्रवास फाउंडेशन. एजुकेशन के सिलसिले में कहना ये ज़रूरी है कि जिस तरह से परवाज़ फाउंडेशन गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप दे करके उनकी पढ़ाई में मदद कर रही है, वो एक बहुत बड़ा काम है समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, कौम के अपलिफ्टमेंट के लिए. हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेट्स बहुत हैं, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़ गई है. ज़िंदगी के 4 या 5 साल 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक अगर बच्चे ने सही पढ़ाई कर ली और सही दिशा का चूज़ कर लिया तो वो ज़रूर कामयाब होता है ज़िंदगी में. मेरी आप सबसे गुजारिश है कि परवाज़ फाउंडेशन के साथ कोऑपरेट करें और उनके साथ एजुकेशन की इस बड़ी मुहिम में उनकी पूरी तरह से हिस्सेदारी निभाएं और उनको सपोर्ट करें. मैंने BLS इंटर कॉलेज से 12 पास आउट किया है. देन मैंने BSc किया है लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज से. आज मैं टीचर हूँ और ये सब जो पॉसिबल हो पाया है वो परवाज़ फाउंडेशन की तरफ से जो मुझे हेल्प मिली है फ़ीस की, उन सब की वजह से पॉसिबल हो पाया है. एंड मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ की कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ. हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ज़कात को कायदे से कैलकुलेट करके अपनी आमदनी से, अपनी सेविंग से टैबुलेट करते होंगे और 2.5% या उससे ज़ायद निकाल देते होंगे. ये जो अपने माल का मैल ज़कात है 2.5%, इससे बहुत बड़ा हम उम्मत में कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे. जो 2.5% की फिगर है ये मिनिमम कही गई है, इसमें ऊपर की कोई भी बार नहीं लगाई गई है. तो जो लोग साहिब हैसियत हैं वो 3% और 4% भी कर दें अगर, तो उनको अल्लाह इस चीज़ का अजर देगा. परवाज़ फाउंडेशन पिछले 22 साल से ज़कात कलेक्शन और उसको एजुकेशन की मद में पूरी तरीके से ईमानदारी से हिसाब किताब के साथ खर्च करने के लिए जानी जाती है. आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोगों का ताउन करें.
I study in class 12. My school name is Unique Convent Junior College. I am preparing for board exams. I am thankful to Parvaz Foundation and all members. कुरान शरीफ में जिन 8 लोगों को ज़कात देने की बात कही गई है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जहां इनफरादी एतबार से ज़कात देने से काम चल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं वहां जब कलेक्टिव ज़कात सिस्टम या इज्तिमाई निज़ाम लगाया गया तब रिजल्ट नतीजे ज़्यादा बेहतर बरामद हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन का ज़माना जब बैतुल माल बनता है और इज्तिमाई ज़कात का एक बेहतरीन सिस्टम बनाया जाता है, तो नतीजा क्या होता है कि जो लोग ज़कात लेने वाले थे वो ज़कात देने वाले बन गए और ज़कात की ज़रूरत कम होने लगी। एजुकेशन और इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की लाइन में जो तंजीमें काम कर रही हैं उनको ढूंढ करके हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात का पोर्शन उनको दें। मेरी नज़र में लखनऊ में परवाज फाउंडेशन है, 24 सालों से करीब 15,000 बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन ने करा है और जो बहुत गरीब घरानों के बच्चे पढ़ लिख करके माशाल्लाह कोई इंडिगो में चला गया है, कोई नेवी में चला गया है, कोई सैफई मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी कर रहा है। मैं आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि अपनी ज़कात जितनी इनएविटेबल हो वो तो इनफरादी एतबार से कर दें, बाकी मेजर पोर्शन अपना परवाज फाउंडेशन को दीजिए और वो बच्चे जो आज ज़कात के मुस्तहक हैं कल वो ज़कात देने वाले आपके ताउन से बने। मैं हाई स्कूल तक पढ़ी हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। एक बेटी मेरी जो है नॉर्मल है, माशाल्लाह 80 में पढ़ती है और उसका जो है परवाज फाउंडेशन की तरफ पूरी फीस जाती है। ये मेरी छोटी बेटी है, 7th दिख रहा है, ये विकलांग है, ये बोल सुन नहीं पाती है, लेकिन अब परवाज फाउंडेशन की हेल्प के जरिए से इसकी थेरेपी चली और ये माशाल्लाह अब बोलती है, तोड़ दे बोलती है, लेकिन थोड़ा बोलने लगी। थेरेपी चल रही है इसकी। मैं अपने पूरे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ परवाज फाउंडेशन। परवाज फाउंडेशन मिल्लत का और मिल्लत के लिए काम करने वाला एक इदारा है। परवाज उन बच्चों को पंख देने की कोशिश करता है जिन बच्चों में हौसला है, जज्बा है, जुनून है और काबिलियत है, मगर असासा नहीं है। आइए हम सब मिलकर मिल्लत के इन बच्चों को पंख दें जिससे ये ऊंची और लंबी परवाज ले सके। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।